Hello, dear students, good morning to you all. As you know, day by day, the condition of corona, that is COVID 19, is being more worst. So, nowadays, it's really tough to take the classroom teaching. And as you know, Pharmacy Council of India has guided the institutions all over India to take classes online, and most probably the classes through online will be started from 12th of August. Till now, I have prepared some lectures on pharmacognosy and phytochemistry, and today is the first lecture I am going to take. And in this lecture, we will study Introduction to Pharmacognosy. And first of all, we have to know what is the objective of this lecture. In this lecture, we will cover what is pharmacognosy, what are different sources of pharmaceutical drugs, particularly here we will talk about crude drugs. What are the different sources of crude drugs? Then we will talk about basis of pharmacognosy, what is the base of pharmacognosy, what is its evolution, how pharmacognosy was evolved, and what development till today have been occurred in pharmacognosy. First of all, we will take the definition of pharmacognosy. What is pharmacognosy? Pharmacognosy is the branch of science that deals study with crude drugs. The term pharmacognosy was first time given by C.S. Sidler in 1815 in his work entitled Analecta Pharmacognostica. It means the term pharmacognosy was given by C.S. Sidler in 1815 in his article Analecta Pharmacognostica. Next, we will talk about what is crude drug. Crude drugs are the drugs which are obtained from natural sources and are raw or unprocessed in nature. It means crude drugs are directly obtained from natural sources, and without much more processing we use these drugs directly. Next, we will talk about what are organized drugs, what are unorganized drugs. As the name itself is suggesting that organized drug means which are comprised from the organ of a plant or animal. Example, cinchona bark, senna leaf. Cinchona bark is the part of plant which is obtained from bark of cinchona. Similarly, senna is the leaf which is the leaf part of senna plant. Next is unorganized drug. Unorganized name itself is indicating un means without, organized means from organs. It means these are the drugs which are not obtained from organs of plant or animal. These are generally plant secretion, latex, mucilage, gums, etc. For example, opium is the latex obtained from opium poppy. Acacia is a gum which is obtained from acacia plant. Aloe itself is a dried extract which is obtained from the fleshy leaves of aloe vera and other species like Aloe barbadensis. Next, what are the sources of crude drugs? Sources means where from we can obtain these crude drugs. The sources of crude drugs may be plant,
may be animal, may be minerals. It means those drugs which are obtained from plant sources and those drugs which are obtained from animal sources and the drugs which are obtained from mineral sources. In pharmacognosy, mainly sources of crude drugs are plant, animal, and mineral, but sometimes some modern techniques like tissue culture technique and marine source of pharmacognosy is also serve as a source of crude drugs. When we talk about plant source of drugs, example is cascara, datura, aloe, rolfia. Lot of examples are there, and few examples of crude drugs are also obtained from animals like musk, which is obtained from musk deer, honey is obtained from honeybee, wool fat is obtained from sheep, and lot of other drugs are also there. And some drugs are also obtained from mineral sources. It means we directly get these crude drugs from earth or mines or earth crustaceans. Example is kaolin, bentonite, shilajit. Shilajit is the popular herbomineral drug which is obtained from the rocks of hilly state or hillsides of India. Next, we will talk about evolution and development of pharmacognosy. How pharmacognosy was evolved and what development have been occurred till the date in pharmacognosy. When we talk about the evolution of pharmacognosy, first we see Chinese herbal document Pent Sao. It contains 365 crude drugs each for a day, which was compiled by Chinese emperor known as Shen Nung approximately 3000 years ago. इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 3000 वर्ष पहले एक चाइनीज शासक थे जिनका नाम था शेन नंग। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनवाया था जिसमें 365 दिनों के लिए हर दिन के लिए एक एक ड्रग यूज़ किया जाता था। तो इस प्रकार सबसे पहले जो रिकॉर्ड मिलता है वो चाइनीज़ एम्परर शेन नंग के टाइम में पेंट साओ के नाम से एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें क्रूड ड्रग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इज papyrus avars. It contains 700 crude drugs and 800 for formula which describe their applications. It is a scroll 60 feet long with the width of 1 feet. इसका मतलब ये हुआ कि papyrus avars नाम का एक स्क्रोल था। स्क्रोल मतलब कपड़े का या कागज़ का बना हुआ एक लपेटा टाइप का था, जिसको जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जन्मपत्रियाँ बनती है पुराने टाइम में तो कपड़े पे लिखा जाता था। वो 7-8 फुट लंबी होती थी। अभी भी जो है उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में कई जगह जो है इस टाइप की जन्मपत्रियाँ आज भी बनती है। उन पे पूरा इंसान का जो है लिखा जाता है कि वो कितने वर्ष जिएगा, उसके जीवन में क्या क्या होगा, वो सारी जो है ज्योतिषीय भविष्यवाणी उसमें की जाती है। ऐसा ही एक स्क्रोल जो है papyrus avars नाम का बनाया था जिसमें 700 क्रूड ड्रग्स का उल्लेख किया गया था। और वो जो papyrus avars नाम का डॉक्यूमेंट था वो 60 फुट लंबा था और उसकी चौड़ाई जो है 1 फुट थी। उसमें कुल मिलाकर के 700 ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। नेक्स्ट, Ayurveda, which is considered an ancient science of life, date back to Vedic period. Various well-known texts in Ayurveda are Charka Samhita, Sushrut Samhita. Apart from these, Dhanvantri is well-known god of medicine. इसका मतलब ये हुआ कि आयुर्वेद जो कि वेदों का एक उपवेद है
उसमें बहुत सारे जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। आयुर्वेद में एक आयुर्वेदाचार्य हुए जिनका नाम था चरक, और उन्हीं के समकालीन दूसरे आयुर्वेदाचार्य हुए थे जिनका नाम था सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता लिखी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। संहिता का मतलब आप बुक कह सकते हो, आज की डेट में हम उन्हें बुक कह सकते हैं। तो इन दोनों संहिताओं में जो है क्रूड ड्रग्स का उल्लेख मिलता है। क्रूड ड्रग्स को जो है डिस्क्राइब किया गया है उनके गुण धर्म के आधार पे, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आयुर्वेद में इन्हें रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि कहते हैं। और उससे पहले धन्वंतरी को हिंदुस्तान में जो है मेडिसिन यानी हर्बल ड्रग्स या क्रूड ड्रग्स का देवता भी कहा जाता है। उसके बाद इन इंडिया 200 to 150 BC, मतलब 200 से 150 साल पहले, चरक ने 50 ग्रुप्स में 10 ड्रग्स के गुणों के आधार पर जो है जो चरक संहिता लिखी थी। उसका मतलब ये हुआ है कि उन्होंने जो है क्रूड ड्रग्स के 50 ग्रुप्स बनाए और 10 गुणों के आधार पे उन्हें, 10 गुणों का मतलब 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने उसको कंपाइल किया था। तो कहने का मतलब यह है कि चरक ने जब चरक संहिता लिखी तो क्रूड ड्रग्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको 50 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया था। इन नियर अबाउट सेम टाइम पीरियड Sushruta was also there, who is also called as father of surgery, and he described 760 herbal drugs or crude drugs in 7 distinct sects। इसका मतलब ये हुआ कि सुश्रुत ने जो है 760 ड्रग्स का जो है 7 अलग अलग क्लासेस में डिस्क्रिप्शन दिया है। और सुश्रुत को इंडिया में यानी आयुर्वेद में फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि सुश्रुत ही वो साइंटिस्ट थे। उस समय तो उन्हें वैद्य कहा जाता है, आज के डेट में हम उन्हें साइंटिस्ट कह सकते हैं। वो पहले सर्जन थे जिन्होंने सर्जरी परफॉर्म की, उन्होंने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी भी की है, इसीलिए सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हिप्पोक्रेट्स इन 460 to 360 BC, which is also known as father of medicine, that is in western world it is called father of medicine in western world। western world का मतलब होता है यूरोप आदि जो कंट्री है, अमेरिका आदि जो कंट्री है, उनको वेस्टर्न वर्ल्ड बोला जाता है। और उनका मानना है कि हिप्पोक्रेट्स जो है फादर ऑफ मेडिसिन है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो जो है धन्वंतरी को जो है दवाइयों का यानी मेडिसिन का गॉड कहा जाता है। तो हमें खैर इस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो फार्माकोग्नोसी का इवोल्यूशन देखना है। उसके बाद एरिस्टोटल, जिसे अरस्तु कहा गया है, 384 से 322 साल पहले यानी ईसा से 384 से 322 साल तक वो जिए थे। उसके बाद डायोस्कोराइट्स 40 to 80 AD, AD मीन्स आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह, क्रिश्चियन एरा इसे कहते हैं। उसके बाद गैलन 131 से 200 AD, एंड मेनी एंशिएंट प्रैक्टिशनर्स ऑफ अरब मेड नोटवर्थी कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिप्पोक्रेट्स हो गया, अरस्तु हो गया, डायोस्कोराइट्स हो गया, गैलन हो गया, और बहुत सारे अरब जो प्रैक्टिशनर थे उन्होंने भी फार्माकोग्नोसी के विकास में बहुत अहम रोल प्ले किया था। उसके बाद हम फिर इसी के कंटिन्यूएशन में देखते हैं पैरासेल्सस एक प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने 1493 से लेके 1541 तक का उनका लगभग टाइम पीरियड माना गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक कि वो एग्जैक्ट उनका डेट ऑफ बर्थ क्या थी और वो कब तक जिए थे। पुराने टाइम में जो है इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता था कि कौन कब पैदा हुआ और कब उसकी डेथ हुई। तो एक मोटा मोटा रफ टाइम जो है
एस्टिमेट किया जाता है। तो पैरासेल्सस 1493 to 1541 में हुए थे। ही वॉज ए केमिस्ट। ही डेवलप्ड द वेरियस थेरेप्यूटिक mineral salt remedies, which was a milestone in the development of pharmacognosy. Lee Mary's 1645 to 715 first timed use alcohol for extraction of crude drugs. अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो पैरासेल्सस थे वो एक केमिस्ट थे जिन्होंने मिनरल ड्रग्स से, यानी क्रूड ड्रग्स जिन्हें हम मिनरल में से प्राप्त करते हैं, उन्होंने उन मिनरल ड्रग्स की जो है कुछ रेमेडीज़, यानी आज के हिसाब से हमने डोजेस फॉर्म्स बोल सकते हैं, उन्होंने तैयार की थी। और यह रेमेडीज जो है फार्माकोग्नोसी में एक माइलस्टोन साबित हुआ इसके डेवलपमेंट में। एक साइंटिस्ट थे ले मेरी, उन्होंने 1845 टू 1715 यानी ले मेरी 1645 से 1715 तक इन्होंने सबसे पहले जो है अल्कोहल को एज ए एक्सट्रैक्शन एजेंट यूज़ किया था। यानी वो सॉल्वेंट जिससे क्रूड ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाले जाते हैं उसको जनरली हम एक्सट्रेंट या एक्सट्रैक्टिंग एजेंट या एक्सट्रैक्शन एजेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ले मेरी ने सबसे पहले अल्कोहल को एज ए एक्सट्रैक्टिंग एजेंट यूज़ किया था। इससे जो है फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि क्रूड ड्रग पाउडर अगर हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन जब हम इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो तो ज़्यादा प्योर होता है, बल्क उसका कम होता है, उसको हैंडल करना आसान होता है, उसकी डोज भी कम होती है और पोटेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद ए बेंचमार्क वाज सेट बाय डिरोजन, a German pharmacist, in 1803, who isolated the narcotin and alkaloid of opium. Morphine was isolated by Serturner in 1803 from opium and its analgesic property was recognized. अब मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। डिरोजन एक जर्मन फार्मासिस्ट थे जिन्होंने 1803 में सबसे पहले नार्कोटीन निकाला था। नार्कोटीन एक एल्केलाइड होता है जो हमें ओपियम पॉपी में से मिलता है, जिसे यहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अफीम कहा जाता है। अफीम में से सबसे पहले 1803 में जर्मन फार्मासिस्ट डिरोजन ने नार्कोटीन निकाला था। देन यू हैव टू नोट डाउन दैट डिरोजन वाज द फर्स्ट फार्मासिस्ट हु आइसोलेटेड नार्कोटीन। तो ये क्वेश्चन जीपेड में भी आ सकता है कि सबसे पहले आइसोलेट होने वाला कौन सा ड्रग था। तो आंसर है नार्कोटीन पहला ड्रग था जिसको आइसोलेट किया गया था, और आइसोलेट करने वाले थे डिरोजन, जर्मन फार्मासिस्ट। कब किया गया था? 1803 में। उसके बाद मॉर्फिन वाज आइसोलेटेड बाय सर्टनर इन 1803, यानी मॉर्फिन ओपियम में से ही सर्टनर नाम के एक वैज्ञानिक ने निकाला था, और उन्होंने ये भी सिद्ध किया था, ये प्रूव किया था कि मॉर्फिन की जो है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी यानी पेन को कम करने की इसमें क्षमता है। उसके बाद हम देखते हैं इन 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी थी, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, तो इस 19th सेंचुरी में क्या हुआ? स्टिक्निन, इमेटिन, ब्रूसिन, पाइपरीन, क्विनिन एंड कॉल्चिसिन वेर आइसोलेटेड इन दिस सेंचुरी। कहने का मतलब है स्टिक्निन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक एल्केलाइड होता है जो हमें स्टिक्नोस नक्स भूमिका में से मिलता है। इमेटिन एक एल्केलाइड होता है, ये हमें जो है इमेटिन सिफेलिस नाम के एक प्लांट से मिलता है। उसके बाद ब्रूसिन, ये भी हमें नक्स भूमिका से मिलता है। पाइपरीन, ठीक है, ये रोल्फिया में से भी मिलता है। क्विनिन सिनकोना में से मिलता है। कॉल्चिसिन एक ड्रग होता है, उसमें से जो है कॉल्चिकम एक ड्रग होता है, उसमें से कॉल्चिसिन निकलता है, यानी उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्चिसिन होता है। ये 19वीं शताब्दी में यानी 19th सेंचुरी में इन सबको जो है आइसोलेट किया गया था इनके सोर्स में से।
उसके बाद फ्रेंच फार्मासिस्ट आइसोलेटेड स्टिक्नीन फर्स्टली फ्रॉम इगेटियस बीन्स एंड सेकेंडली फ्रॉम नक्स भूमिका। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंच फार्मासिस्ट ने जो है, जिनका नाम था पेलेटियर, ये आपको याद रखना है, पेलेटियर जो कि एक फ्रेंच फार्मासिस्ट था, उन्होंने पहले स्टिक्नीन निकाला नक्स भूमिका में से और बाद में उन्होंने ही इसको इगेटियस बीन से निकाला था। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पेलेटियर ने क्या किया था। पेलेटियर एक फ्रेंच फार्मासिस्ट थे, पहले उन्होंने इगेटियस बीन्स में से स्टिक्नीन निकाला, उसके बाद उन्होंने ही इस स्टिक्नीन को नक्स भूमिका के सीड्स में से निकाला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 19th सेंचुरी में एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है फार्माकोग्नोसी में, जब स्टिक्नीन, इमेटिन, ब्रूसिन, पाइपरिन, क्विनिन, कोल्चिसिन इनके सोर्स में से निकाले गए। फिर पेलेटियर नाम के एक फ्रेंच फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने स्टिक्नीन पहले इगेटियस बीन्स में से निकाला और बाद में उन्होंने ही इसको यानी स्टिक्नीन को नक्स भूमिका सीड्स में से निकाला। तो मुझे यकीन है आपने यहाँ तक अच्छे से सुन लिया होगा, समझ भी लिया होगा, और साथ में जो है जो लिंक दिया गया है उसमें ये सब पावर पॉइंट में मैंने बना रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, इसका प्रिंट ले सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं term materia medica was in use during 19th century till the term pharmacognosy was given by C.A. Sidler in 1815. In his work on Subcerilla entitled Analytica Pharmacognostica। अब बच्चों आपके समझ में नहीं आया होगा कि इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि C.A. सिडलर ने 1815 में सर्वसरिल्ला एक ड्रग है उस पे उन्होंने काम किया था। उस अपने काम को, अपने वर्क को उन्होंने पब्लिश किया था एक आर्टिकल में, जिस आर्टिकल का नाम था एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। क्या नाम था? एनालिक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी टर्म तो C.A. सिडलर ने इस एनालिक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका से निकाला। उससे पहले फार्माकोग्नोसी के लिए या मेडिसिन के लिए या हर्बल मेडिसिन के लिए जो टर्म यूज होता था, दैट टर्म वाज बीइंग यूज, क्या नाम था उसका? मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका आपको अच्छे से याद रखना है, मटीरिया मेडिका, METERIA मटीरिया मेडिका। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद मेंडल्स को आप जानते होंगे, मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी का फादर मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक सबसे पहले अप्लाई की थी। हाइब्रिडाइजेशन में जो है क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है, 2-3 डिफरेंट वैरायटी के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको आपस में उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले ये काम किया था मेंडल ने, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक उसने मटर के पेड़ों पे अप्लाई किया था। तो ये एक माइलस्टोन था फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में, क्योंकि इससे क्या हुआ कि अच्छी वैरायटी के प्लांट्स हमें डेवलप करने में हेल्प मिली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो मेंडल्स का काम था, जो पाइजम सटाइवम होता है यानी मटर का जो पौधा होता है, तो मटर की अलग अलग वैरायटी होती है। कुछ पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, कुछ रिंकल्ड होते हैं, कुछ स्फेरिकल सीड वाले होते हैं, कुछ फ्लावर का कलर वाइट होता है, किसी का पर्पल होता है। तो उन्होंने अलग अलग जो कलर के फ्लावर और अलग अलग प्रकार के जो सीड्स हैं उनकी वैरायटीज़ का आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवा करके हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और इस हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप हमें नई नई अच्छी वैरायटी के पौधों को डेवलप करने में हेल्प मिली। अब इसी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स को हम आज की डेट में मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा ईल्ड देने वाली मेडिसिनल प्लांट्स की वैरायटी मिले और
ये जनरली पेस्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है, और इनका टाइम पीरियड भी कम होता है ताकि हमें प्लांट में से जो प्लांट पार्ट हमने लेना है वो हमें कम से कम टाइम में मिल जाए। उसके बाद बोहेल एक साइंटिस्ट थे, उसके बाद टिसरिच एक साइंटिस्ट थे, इसे स्रिच भी कहते हैं, टी यहाँ साइलेंट होता है। बोहेल एंड स्रिच एंड अदर एस्टेब्लिश बेंचमार्क इन डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन एमंग crude drugs by introducing the anatomical features of the powdered crude drug। आप हिंदी में समझिए, बोहेल, स्रिच और अन्य वैज्ञानिकों ने जो एडल्ट्रेशन होता है क्रूड ड्रग्स में, यानी मिक्सिंग होती है इन्फीरियर सब्सटेंसेस की, जो मिक्सिंग होती है ओरिजिनल ड्रग्स के साथ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी एडल्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्क्राइब किया था। किसके? जो क्रूड ड्रग्स का पाउडर होता है, क्रूड ड्रग्स के पाउडर के अंदर के एनालिटिकल फीचर्स क्या हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स क्या हैं, यानी उसके पाउडर के अंदर जैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे सीव ट्यूब्स होती है, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स होते हैं, एंड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा, जो भी होते हैं। सबसे पहले उनको डिस्क्राइब किया था कि इन कैरेक्टर्स के हिसाब से जो क्रूड ड्रग के पाउडर के एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, उसके हिसाब से हम इसमें एडल्ट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ये किसने किया? बोहेल, स्रिच और कुछ अदर साइंटिस्ट ने। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फार्माकोग्नोसी में अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है, यानी फार्माकोग्नोसी को डिफाइन किया। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन के बाद हमने ये देखा कि क्रूड ड्रग क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझा। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं, ये हमने अच्छे से इसको समझा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी क्रूड ड्रग हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा कि फार्माकोग्नोसी कैसे करके इवॉल्व हुई, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इसकी उत्पत्ति के बाद इसमें डेवलपमेंट हुआ। जो आज की डेट में फार्माकोग्नोसी बहुत एडवांस है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है और बहुत एडवांस कंडीशन में है। तो ये एक दिन में नहीं हुई है, इसको कम से कम 5000 सालों की यात्रा है उसकी। फार्माकोग्नोसी इज हैविंग इट्स जर्नी नियर अबाउट 5000, बट इन इंडिया इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट इट इज हैविंग मोर देन 10,000 हिस्ट्री ऑफ क्रूड ड्रग्स बीइंग यूज्ड बाय पीपल्स। तो हमने इस होल लेक्चर में फार्माकोग्नोसी क्या होती है, क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि फार्माकोग्नोसी कैसे इवॉल्व हुई और कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ। अब बात आती है कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या पता होना चाहिए। यानी अगर क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि पीसीआई के सिलेबस के हिसाब से है कि उसमें एमसीक्यू भी बनते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी हमें डिस्क्राइब करना होता है किसी टॉपिक को, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो है कुछ प्रश्नों के जवाब देने की एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी, ठीक है, तो ये एक शॉर्ट आंसर है, तो आपने क्या बोलना है? फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज क्रूड ड्रग, ये भी जो है शॉर्ट आंसर बन सकता है कि क्रूड ड्रग क्या होता है। तो क्रूड ड्रग्स आर रॉ और अनप्रोसेस्ड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो है प्लांट के किसी ऑर्गन में से मिलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होते हैं वो जनरली म्यूसिलेज, गम्स या सेक्रीशंस
या लेटेक्स वगैरह होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम बड़ा क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है, यानी जो डिटेल क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग के डिफरेंट सोर्सेज क्या है, राइट इन डिटेल। तो आपको जो है प्लांट्स के बारे में डिटेल में लिखना है कि कौन कौन से प्लांट में से कौन कौन से ड्रग मिलते हैं। ऐसे ही आपने जो है एनिमल में से लिखने की कौन कौन से एनिमल से कौन कौन से ड्रग्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिटेल क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट पे एक डिटेल नोट लिखिए या डिस्क्राइब द डेवलपमेंट हाउ फार्माकोग्नोसी वाज इवॉल्व इन डिटेल। तो इसमें जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि कैसे 5000 साल से लेके आज तक कैसे कैसे करके ये डेवलप हुआ है, कैसे कैसे करके इवॉल्व हुआ है। इसके अलावा जैसे आपकी जीपैट की आपने तैयारी करनी है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैंने अभी सब डिस्क्राइब किया। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते। जैसे फार्माकोग्नोसी टर्म C.S. शिल्डर ने दिया था, कब दिया, 1815 में। ठीक है, ऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज ड्रग्स, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट सोर्स कंटेनिंग ड्रग्स। ठीक है, और बीच बीच में जो फार्माकोग्नोसी के इवोल्यूशन में जो टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे मटीरिया मेडिका है, ठीक है, एल्केलाइड किसने आइसोलेट किया है। तो आपको ये सब अच्छे से पढ़ना है और लेक्चर सुनना है, और मैं इसको क्लासरूम में डाल रहा हूँ, गूगल क्लासरूम में। आप वहाँ से इसको निकाल लेना, प्रिंट निकाल लेना और अच्छे से पढ़ना। और हम फार्माकोग्नोसी के आगे भी लेक्चर इसी टाइप से करते जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, हैव ए गुड डे।